Politics over brutal stabbing of 23-year-old Congress corporator's daughter Neha has sent shockwaves across the country. Siddaramaiah government has been facing backlash over the probe into the murder case. Now, BJP has upped the ante against Congress government and held statewide protest. Even BJP student wing, ABVP, staged protest over Neha murder case. So protests continue. The Bharatiya Janata Party has protested today against the government. And I'm given to understand that my colleague Neha is joining us on the broadcast, and I believe family members of the victim are with her. Yes, Neha, over to you. Neha, if you can hear me, please go ahead. I'm being told that you're joined by family members. Okay, I think we're not able to connect with Neha at this point of time. We'll try and connect with her again so that we can get you the latest reaction of the family. We earlier, remember, spoke to victim Neha's father, Niranjan Hiremat, who said that he does not trust the law and order situation and the law enforcers anymore and is demanding a CBI probe in the case. Gaurav Bhatia is holding a press conference right now. Let's cut live to it. और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से एक बात स्पष्ट करके कही कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक है, हम विपक्ष में हैं कर्नाटका में, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती। हम उजागर कर रहे हैं किस तरह से जब हमारी बहन की हत्या कर दी गई, क्योंकि आरोपी एक धर्म विशेष से है, तो उसको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया स्वयं, उनको खड़ा होना चाहिए था पीड़ित परिवार के साथ, और वो खड़े हो रहे हैं जो आरोपी हैं उनके साथ। ये पूछा नहीं जाएगा सरकार किसकी? कांग्रेस की। कॉरपोरेटर किसका? कांग्रेस का। साथ कौन खड़ा है पीड़ित परिवार के? भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। हमने मांग करी कर्नाटका की पुलिस नेताओं के दबाव में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही, सीबीआई जांच होनी चाहिए। All right. So Gaurav Bhatia says CBI probe should happen. Police, under the pressure of the netas, the politicians, is not acting. Neha is joined by family members of the victim. Neha, over to you. Yes, that's right. In fact, we're here at the residence of, Neha Hiremat, where we're seeing that, her father, Niranjan Hiremat, in fact, is, of course, with us. We're just waiting for, of course, him to get done shortly. We're given to understand he is, of course, speaking with others right now. But just to give you a sense of, of course, of the house over here where her relatives are right now, we're seeing that, her father, too, of course, earlier, while speaking with us exclusively, did go on to suggest that, he doesn't have faith in the investigation. But just a little while earlier, as the information of course, him coming, to of the investigation being, of course, sent to the CID right now, we're seeing that things, of course, at this point in time have settled down a little here. Just a little while earlier also, of course, he went on to thank the Chief Minister and the government for having transferred this case to the CID. We'll, of course, just try and get in a word from him very quickly. Of course, sir, we are just live. Just give us 1 minute, sir. We are live. No, I understand, sir. Just give us 1 minute. I understand, sir. I understand. सर बस एक बात आपसे हम कर लेंगे सर। अभी केस सीआईडी को ट्रांसफर हुआ है सर, तो आपका क्या कहना है इस पे? मैं स्वागत करता हूं अपना राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं विनती किया था इसको सीरियसली ले करके, उन्होंने सीरियसली लिया है। आज हमारे को कुछ ना कुछ न्याय मिलने का संभावना दिख रहा है। आज का जो आदेश है मैं उसको स्वागत करता हूं। जितने भी अपना प्रोटेस्ट किया हुआ है सारे एसोसिएशन वाले को
जितने भी समाज वाले को, जितने भी अब साधु संत लोगों को, जो हमारे ये बेटी के हत्या होने के बाद उन्होंने रोड पे आके इन्होंने प्रोटेस्ट करने के बाद ये मुख्यमंत्री जी हाई प्रोफाइल केस है करके अभी उन्होंने डिटेल करेक्ट लेके आदेश किया हुआ है। मैं उनको अभिनंदन उनको मैं उसके बारे में उनको मैं धन्यवाद बोलने के लिए सर, चाहता हूं। आखिरी सवाल आपसे। कल आपने सीबीआई का प्रोब मांगा था जब जेपी नड्डा जी आए थे यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। आज अभी सीआईडी प्रोब के साथ आप खुश है कि कुछ न्याय मिलेगा आपकी बेटी को? अभी तो फिलहाल आदेश किया है मैडम मेरे को। अभी मेरा घर में जो आज 5वां दिन है उसका जो हमारे समाज से जो कार्यक्रम रहता है उसका आज दिन चल रहा है। पहला मौका ही अच्छा आदेश आया हुआ है। अभी वो जो आएंगे उसके ऊपर वो जो भेजेंगे उसके ऊपर आएगा। सर, आखिरी सवाल सर आपसे। जब सुबह आप हमसे बात कर रहे थे सर, आपने आरोप डाला था, जब सुबह आप हमसे बात कर रहे थे हमारे चैनल से, आपने आरोप किया था कि आपका सरकार ये केस को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। सर, आखिरी सवाल सर आपसे। जब आपने जी सर, आपने आरोप लगाया था कि सुबह इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं चल रहा था, अभी वो ठीक है सर? आपको लग रहा है सीआईडी से वो ठीक है? सीआईडी जो है Swati, we'll try, of course, getting back to him. We also have to respect the fact that, he is, of course, in mourning currently. We have given to understand that, of course, there are a lot of rituals that need to be completed at this point in time, given the fact that, it's just, of course, the 5th day is what he says. We'll, of course, try and get in a word from him again later. But the move that the government, of course, has now taken to transfer the case to the CID is, of course, being welcomed here by the family. Well, Neha, thank you very much for getting us that reaction. The father, in fact, has responded to the fact that the investigation has now been given to the CID. He says he's hopeful justice will happen, and he's also thanking all the people who are supporting the Karnataka government. That's the breaking input, has transferred the case to CID. Karnataka vows fast-track probe. And Neha got us that reaction. The first reaction, in fact, on the case being transferred to the CID. Although the father had demanded a CBI probe, but the Karnataka government has transferred the case to CID. Let's go back to the press conference being held by Gaurav Bhatia. तो इस बहन की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि सोनिया गांधी जी, आपने तो एक शब्द नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा गांधी जी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, उनके मुंह में दही जमी हुई है। जब इस तरह से दिन दहाड़े हत्या होंगी और मुख्यमंत्री जांच खत्म होने से पहले कह देगा दिस इज नॉट अ केस ऑफ लव जिहाद, according to the chief minister, this is not even a case where law and order has completely broken. This is the new normal in the state of Karnataka. It raises very serious questions. And जब मैंने इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करी थी तो मैंने एक बात कही थी, तुष्टीकरण। मैंने आपके समक्ष उदाहरण रखे हैं। किसी नागरिक की जान चली जाए, उस बहन का दोष केवल इतना था कि उसने एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूं, और उसे मार दिया जाता है। यह एक बीमारी है जो इंडी अलायंस के अंदर है, और इस बीमारी को उजागर करना यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको कर्नाटका की ही बात करते हुए बताता हूं। रामेश्वरम ब्लास्ट हुआ, क्या वक्तव्य आया कर्नाटका सरकार का? उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ है नहीं, हम जांच कर रहे हैं। जो आरोपी थे उनका धर्म देख के उनको संरक्षण देने का काम किया। उसके बाद एनआईए ने जांच जो है अपने हाथ में ली। क्या हुआ? त्वरित गति से, बड़ी मजबूती से विवेचना होती है और जो आरोपी होते हैं उन्हें पकड़ा जाता है। और इसके तार जो दूसरी तुष्टीकरण की सरकार पश्चिम बंगाल में है, वहां पे
आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। यह फर्क है। एक जांच एजेंसी जो संविधान के तहत चलती है, जिसको खुली छूट है कि वो अपना कार्य करे, और दूसरी तरफ कर्नाटका में जो जांच एजेंसी है उन पे दबाव है कि किसी भी तरह से जो आरोपी हो उनको बचाया जाए, क्योंकि उनका धर्म देखा जा रहा है। हमें तो वोट से मतलब है, किसी महिला की अस्मिता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी क्रम में हिंदू नफरत की बात, यह अति आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है, हमने देखा किस तरह से कर्नाटका में ही रामनवमी का पावन पर्व था। रामनवमी के पावन पर्व पे जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, उनको पीटा गया, उनसे जबरदस्ती करी गई और उनसे कहा गया कि ये नारे तुम यहां नहीं लगा सकते, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। ये कैसी पद निरपेक्षता है? क्या कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में अब भारत का संविधान लागू नहीं होगा? जो मूल अधिकार हर नागरिक को मिला है उसका हनन होगा और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी?